May I come in? आइए. Good morning, sir. Good morning, sir. Thanks. Well, Saswat, Yes. you are accounts personnel. Yes, sir. Tell me what happened is Hindenburg Adani case. What was the problem, issue in the Hindenburg report? Oh, sir. Sorry, sir. Not able to recall. You don't, Tell me how a balance sheet, balance sheet? Yes, sir. What are the main components of the balance sheets? The main component of balance sheet is assets and liability. Um, Under assets, many two types of subheading are there. Like first is current assets and non-current assets, and liability sides. There are four heads like shareholders fund and current liability, non-current liability. Okay, I understand these are the assets liability, but what are the statements which part of balance sheets? Total balance, there are several statements there. What are those statements? So statements like profit and loss account and trading account, cash flow statement. These all are the sub statements of balance sheet, which helps to make balance sheet. Now, see, these are the double entry. There is a single entry system. Of course, in commercial accounting, that is not done. What is the single entry system? What is double entry system? How do they differ? Yeah. The single entry system is like only one only recording is at one place, and double entry is like if you take something, there will be adjustment will take place in two places. For example, if sale is happen, then product will come and cash will go. So two side affect at stock and cash. So when double entry system happens in accounting procedure, it will be at the two side recording at two places. Okay, now you are work in a panchayat as an auditor of panchayat accounts. Okay. Yes. Now, what are the main points where you will concentrate? An auditor has to concentrate while checking the accounts. What are the things here to keep in mind? So first I will check books of account, which is done during accounting. After when accounting ends, then auditing starts. So many books of accounts are there. So I will try to evaluate and try to check any discrepancy or any misleading or any mistake has happened or any error like error of omission, error of commission, compensating error, or any type of error is there or not. So mainly the thing I have to evaluate the accounting book of Panchayati Raj. आय व्ययक लेखा क्या होता है? Where Lekha. जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? Hindi terms. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सब सुना है? हाँ सर सुना है. सर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बलवंत राय मेहता जी दिए हैं. तो इसका मतलब है कि जो भी डेमोक्रेटिक वे में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना, लोकल गवर्नमेंट को कुछ अधिकार देना कि वो सेल्फ रूल कर पाए, जिससे कि गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज वो अटेंड हो पाए. आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? 2015 में सर. उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर 2015 के बाद हम दिल्ली चले गए थे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए. एंड 2018 में मेरे बड़े भाई का किडनी फेलियर हो गया था, जिसके कारण हमको लौट के आना पड़ा. और 2018 से 2022 तक हम उसी में बिजी रहे. 2022 में उनका डेथ हो गया और उसके बाद सर हम पढ़ाई परस्यू कर रहे. सॉरी. हाँ. तो आप तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दिया आपने? यस सर. क्या हुआ वहाँ पे? सर बीपीएससी का प्रिपेयर कर रहा था और यूपीएससी का सर प्रीलिम्स भी नहीं निकला था. प्रीलिम्स नहीं हुआ? नहीं सर. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा था आपने? वहाँ सर पबैट था मेरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था. यहाँ ऑप्शनल में कॉमर्स लिखा हुआ है आपका? यस सर. एक्चुअली ऑप्शन 4 ही था, जिसमें से कॉमर्स ही सुटेबल था मेरे लिए.
ऑडिटर में 4 ही ऑप्शनल वो लोग दे रहे थे, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। तो मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से रहा है, तो हम कॉमर्स लिए थे। अच्छा, तब तो आप मुझे ये बताएंगे कस्टम यूनियन क्या होता है विद एग्जाम्पल। कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन, सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड, कस्टम यूनियन, सॉरी। कस्टम यूनियन। तो सी ए और CPA इसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, CPA सर अभी यूएस के साथ रिसेंटली साइन हुआ है। क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, और इससे ज़्यादा भी सर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल ट्रेड तो पढ़ते ही होंगे ना हाँ उसमें, सर। कॉमर्स में। हाँ क्या पढ़ते हो उसमें बेसिकली आप? सर, जो भी हमारा मतलब जो भी ट्रेड रहता है दूसरे कंट्री से, और हमारा ट्रेड से रिलेटेड जो भी रहता है, अकाउंट्स। हम ये बोलते हैं कि लुकिस्ट पॉलिसी के बाद से हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड काफ़ी बढ़िया हो गया साउथ ईस्ट एशियन राष्ट्र के साथ। क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर हाँ, अभी इंडिया का एक पॉलिसी भी है, लोकेस्ट पॉलिसी, जिसके कारण हम लोग नेबरहुड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि नेबरहुड के साथ जो भी ट्रेड हो उसको हम लोग इंक्रीज़ करें, और उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो हमारा, रादर दैन डेवलप्ड कंट्री के साथ। तो जिससे हमारा नेबरहुड पॉलिसी भी बेटर होगा, और एक रिलेशन भी अच्छा मैंने रहेगा। क्वेश्चन ये किया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड जो है वो क्या वास्तव में बढ़ा है? अगर बढ़ा है तो किस ढंग से बढ़ा है? इसका डेटा नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है। कॉमर्स में ही किया जाए क्वेश्चन ट्रेड पे। कर सकते सर, ट्रेड देखा नहीं होगी ऐसा। अच्छा, ट्रेड नहीं देखा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ अच्छा, ये बताइए आप कि मनी बिल और फाइनेंस बिल इस दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, मनी बिल सर आर्टिकल 110 के अंदर है, और फाइनेंशियल बिल भी एक पार्ट है मनी बिल का। और मनी बिल पास करने के लिए हमको पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, और फाइनेंशियल बिल के लिए जब एक हाउस से दूसरे हाउस में जब बिल ट्रांसफ़र होता है पास होने के बाद, उस समय हम लोग प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेते हैं। तो दोनों में तो वही चीज हो रहा है। सर इसमें पहले अप्रूवल लेना होता है। प्रायर तो फाइनेंस बिल में भी है। फाइनेंस बिल का एक और रूप है जिसमें कि हम प्रायर परमिशन लेते हैं प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 171 पढ़ा है? 173। रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये बताइए संविधान का संशोधन होता है ना? यदि एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजा गया और वो हाउस अगर इनकार कर दे या कोई संशोधन दे दे तो क्या होगा? सर ये देखना होगा कि कौन सा बिल है। अगर संशोधन अमेंडमेंट। हाँ, अमेंडमेंट बिल है तो अगर लोकसभा राज्यसभा को भेजी है, तो अगर ऑर्डिनरी बिल है तो अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर वेट करना होगा, फिर से बिल लाना होगा। मैं बोल रहा हूँ ये अमेंडमेंट बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनरी बिल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल में क्या अंतर है? अमेंडमेंट बिल सर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट के लिए जो भी बिल लाते हैं वो हो जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। और ऑर्डिनरी बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो भी लॉ में अमेंडमेंट लाना होता है, उसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। ठीक है, पूछिए। अच्छा जी। शाश्वत जी, आप जरा बताएंगे जो अभी फाइनेंशियल बजट है, ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट इन विच एरिया अलॉटेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड? सर अभी रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए हाउ मच अमाउंट? अमाउंट नहीं पता। ये डीमैट अकाउंट क्या होता है?
तो डीमैट अकाउंट होता है, जो भी स्टॉक में हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हम लोग एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ट्रेडिंग के पीछे जाना चाहिए क्या? सर हाँ, ये या बढ़ावा। फिर गवर्नमेंट वाकई में ट्रेडिंग करती भी है? तो गवर्नमेंट भी ट्रेडिंग करती है। सो एग्जांपल दें। जैसे सर ट्रेजरी बिल होता है, तो वो भी एक आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट का ट्रेडिंग कह सकते हैं। और भी सर है ऑप्शन, लाइक सर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग LIC में पैसा डिपॉजिट करते हैं। हाँ सर। वो पैसे बढ़ के हमें मिलते हैं हाँ 5 साल बाद। यस सर। तो उस 5 साल के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने उस पैसे का क्या किया? उस पैसे को सर किसी ऐसे मतलब प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, और उससे जो रिटर्न आता है, फिर जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, उससे हम लोग को इंटरेस्ट पे किया जाता क्या है। ये ट्रेडिंग है एक तरीके का? यस सर, ट्रेडिंग में। ठीक है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अननेसेसरी पैसे बर्बाद कर रही है ऑडिटर को, ग्राम पंचायत में ऑडिटर को बना के। क्या इससे आपको लगता है? सर ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो भी अकाउंटिंग का जो भी प्रोसेस है, जहाँ कहाँ हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और जिस पर्पस के लिए आया था उस पर्पस में पैसा लग रहा है कि नहीं, और अगर लग रहा है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है कि नहीं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है ऑडिट के थ्रू। तो ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, तो होना चाहिए। ठीक है। आपने बोला कि आपका हॉबी कुकिंग है। यस सर। किस टाइप के खाना बनाते हैं? सर वेज नॉन वेज दोनों, जो हमारे कल्चरल फूड्स हैं वो। मतलब किस एरियाज का? नॉर्थ इंडियन, साउथ नॉर्थ इंडियन, इंडियन, चाइनीज? नॉर्थ इंडियन एंड चाइनीज भी सर ट्राई करते हैं। चाइनीज भी ट्राई करते हैं। ठीक है। आपका इससे पहले कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी वजह? सर भैया में थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, क्योंकि किडनी का मतलब डायलिसिस वगैरह कराना मेरा ही काम रहता था, फादर को टाइम नहीं रहता था। तो उनमें डे बाय डे हम इन्वॉल्व होते चले गए, क्योंकि उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर होते चला गया। तो डे बाय डे चैलेंजेस बढ़ता गया, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाता था मेरा। तो इस बार आपको कितनी उम्मीद है सफलता के लिए? सर एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि होना चाहिए जो बेटर दैन द बेस्ट हो सकता है, और अभी हम अपना पूरा टाइम अपने पढ़ाई को दे पा रहे हैं, जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे 3-4 साल। तो अभी हम अपना 100% दे रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर और रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टायर 3 सिस्टम? तो टायर 3 सिस्टम में फर्स्ट लेवल पे जिला परिषद आता है, और उसके बाद पंचायत समिति आता है ब्लॉक लेवल पे, और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत आता है। आप जो ऑडिट करेंगे यस सर। वो किस लेवल पर करेंगे? सर हमारे ऑडिट का हम लोग तीनों लेवल पे कर सकते हैं। नहीं, आपको जो ऑडिटर बनाया जाएगा वो किस लेवल बनाया जाएगा? सर ग्राम पंचायत। आप किनको रिपोर्ट करेंगे? हम करेंगे सर बीपीआरओ को। BPR को? यस सर। ये कहाँ बैठते हैं? ये ब्लॉक लेवल पे बैठ। ब्लॉक लेवल पर। ठीक है सर। शाश्वत, यस आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ। थैंक यू सर।